Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the first lecture of Introduction to Architecture in Town Planning. So, if we think that the name of this subject is comprised on two words, such as one is architecture, another one is town planning. So now we study architecture is the midterm course and town planning is the final term course, right? It is necessary for all of the students to start before any subject to introduce to know background of any subject because when we explain the general concept of architecture is to one of the advantage is to clear the basic concept of architecture. Our coming lecture and their concept is to be clear, right? That's why before starting the lecture first we going to explain the general concept of architecture. So after we start architecture basic design, the basic purpose of this lecture is to introduce that what is architecture as well as basic concept of architecture. And also we will explain that how an architecture think for a new design of a project and how they imagine to create a new design of a building. First, we explain that what is architecture. What is architecture? The selection of form, shape, material, texture, color, etc. for a structure to make it look elegant and beautiful is called architecture. Mean that कि हमारे पास फॉर्म शेप मटेरियल टेक्सचर कलर उनको हम सिलेक्शन करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग कि हमारे पास कौन सी टाइप जो है वो जिस तरह हमारे पास शेप्स है कौन सी शेप्स हम यूज़ करेंगे इस बिल्डिंग में इसका जो शेप्स है ठीक है इस बिल्डिंग के लिए हम कौन से टाइप्स हम मटेरियल यूज़ करेंगे ग्लास हम यूज़ करेंगे हम सीमेंट वगैरह हम यूज़ करेंगे स्टील हम यूज़ करेंगे राइट उसके बाद हमारे पास टेक्सचर जो है हम कौन सी किस्म के हम टेक्सचर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हमारे पास जो है टेक्सचर में ठीक है हम कौन सा वाला हम यूज़ करेंगे ठीक है बिल्डिंग में फॉर ए स्ट्रक्चर टू मेक इट लुक एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल इस पर्पज़ के लिए कि हमारे पास एक बिल्डिंग जो है इट्स लुक एंड एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल कि हमारे पास बिल्डिंग जो है उस उनका लुक जो है वो एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल हमारे पास आ रही है ठीक है इट्स कॉल्ड आर्किटेक्चर दिस इज कॉल्ड आर्किटेक्चर राइट इट टेल अस हाउ टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द बिल्डिंग इकोनॉमिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मटेरियल एज वेल एज ऑफ स्पेस मीन दैट कि हमारे पास ये आर्किटेक्ट जो है वो हम ये बता रही है हम ये शो कर रही है कि हमारे पास बिल्डिंग जो है इसका कितना स्पेस हमें रिक्वायर्ड है एज वेल एज मटीरियल एज इकोनॉमिकल कि ये बिल्डिंग हमारे पास जो है ये आया हमारे पास इकोनॉमिकल है या नहीं है राइट इट मेक अस ऑफ अप्लाइड सर्विस सच एज स्ट्रक्चर इंजीनियर सैनिटेशन हाइजीन एंड वेंटिलेशन उसके साथ साथ इन चीज़ों का भी हम इन पर हम फोकस करेंगे हमारे पास एक बिल्डिंग जो है ये हमारे पास जो बिल्डिंग है इनमें हम वेंटिलेशन हम चेक करेंगे स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है हमारे पास जो है उसमें हम स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है वो चेक करेंगे सैनिटेशन वगैरह हमारे पास जो है अंडरस्टैंड उसके बाद हमारे पास जो है इट्स यूटिलाइज प्रॉपर मटीरियल एट द प्रॉपर प्लेस एंड इट्स अप्रोप्रिएट फॉर्म बेसिकली हमारे पास इस बिल्डिंग में प्रॉपर मटेरियल यूटिलाइज एंड प्रॉपर प्लेस हम इस बिल्डिंग के लिए हम यूज़ करेंगे हमारे पास ये बिल्डिंग जो है इसमें हमारे पास प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड मटेरियल प्रॉपर एंड प्लेस प्रॉपर दिस इज आर्किटेक्चर वर्क मेन बेसिकली so now we are coming toward what is the rule of architecture and town planning and civil engineering being that कि हमारे पास
आर्किटेक्चर इन टाउन प्लानिंग का क्या रूल है सिविल इंजीनियरिंग में, राइट? The relation of an architect basically with the civil engineering, especially the structure engineering, play an important role in a building design process. Like first of all, architect satisfied a client with a project. Then architect make a design for the project rule include all of the drawings such as elevation, plane, cross section. Then forward these drawing to the structure engineering. Okay, structure engineering check with the stability of the structure with the help of different software of design such as SAP and ETAP and with the help of different formula mean that manual calculation जिस तरह हमारे पास है PRCD हमने स्टडी किया है हमारे पास स्ट्रक्चर वन स्ट्रक्चर टू, ठीक है? तो इसके ज़रिए हम क्या करेंगे, हम बीम हमारे पास स्ट्रक्चर जो है हम डिज़ाइन करेंगे PRCD में, हम प्रॉपर हम डिज़ाइन करेंगे हमारे पास बीम में कितना हम रेनफोर्स ऐड करते हैं, इसका ये बिल्डिंग हमारे पास ये आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया है, ये बिल्डिंग हमारे पास स्टेबल है या नहीं है, राइट? When the structure and design are done safe and economical, then structure engineer recommend that design of an architect is okay. अगर हमारे पास स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है उनका डिज़ाइन वो इसका डिज़ाइन करेंगे, हमारे पास इतना रेनफोर्स हम ऐड करेंगे यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, वो स्टेबल करेंगे बिल्डिंग, तो उसके बाद वो आर्किटेक्ट को सेटिस्फाइड करते हैं कि आपका जो डिज़ाइन है वो ओके एप्लीकेबल है, ठीक है? उसके बाद बट इफ द स्ट्रक्चर engineer check the stability of the structure that is designed by architect which is uneconomical and not a safe structure, then structure engineer again meet with the architect then change the design. अगर हमारे पास एक ऐसा आर्किटेक्ट ने ऐसा डिज़ाइन किया उनका स्टेबल नामुमकिन है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है वो दोबारा आर्किटेक्ट के साथ डिस्कशन करते हैं कि आपका जो डिज़ाइन है वो अनइकोनॉमिकल है, मीन दैट कैन अनस्टेबल है, उनका जो शेप है वो चेंज आप इसमें मॉडिफिकेशन करें, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉकिंग अबाउट डिज़ाइन ऑफ ए बिल्डिंग, so how architecture create a new idea in the design of building. Basically architecture totally focus on natural shape. हमारे पास हम ये इस लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि हमारे पास आर्किटेक्ट जो है वो किस तरह आइडिया पेश करते हैं, किस तरह डिज़ाइन करते हैं। बेसिकली आर्किटेक्चर जो है टोटल फोकस ऑन द नेचुरल शेप, ठीक है? वो नेचुरल शेप से आइडिया ले सकते हैं, ठीक है? नेचुरल शेप हमारे पास जो है उससे वो बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, टोटली फोकस ऑन द नेचुरल शेप। उसके बाद हमारे पास जो है लेट्स सपोज लेनिंग टावर हमारे पास जो है, सो बेसिकली जब हम आर्किटेक्चर में जब हम स्टडी करते हैं किसी को हम इनके आर्किटेक्चर के बारे में हम समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास इस तरह है, तो हम क्या करेंगे, उनको हम पिक्चर के ज़रिए, ड्राइंग के ज़रिए, शेप के ज़रिए एंड एग्जाम्पल के ज़रिए हम उनको सेटिस्फाइड करते हैं, उनको हम उसको हम समझाते हैं, ठीक है? कि हमारे पास ये इस तरह है। अगर हम किसी बिल्डिंग पे किसी शेप पे मैं आपको एक बुक कंप्लीट बुक लिखूंगा कि ये इस तरह है, ये इस तरह है, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है? लेकिन जब मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसके अलावा एक शेप के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा कि ये शेप हमारे पास इस तरह है, ये इस तरह है, तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ आ रही है, राइट? उसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल है, तो उसके ज़रिए हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आर्किटेक्चर का वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? मैंने एक टावर का स्टडी किया है जो कि लेनिंग टावर हमारे पास जो है, तो ये हमारे पास लेनिंग टावर है अबू धाबी में। हाँ, लेट्स सपोज इन द डिज़ाइन ऑफ लेनिंग टावर इन अबू धाबी व्हेन खलीफा बिन Ziyad Al Nahyan wanted to create a skyscraper which is world recorded in
in that time. When the task provided to the top London architect RMJ, he think that the new design of a building once upon when he traveled in the beach of the sea. बेसिकली इस ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास लेनिंग टावर है अबू दुबई में। ये लेनिंग टावर का वर्टिकल पोर्शन, इसका टू पोर्शन है बेसिकली इस टावर का। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास वर्टिकल पोर्शन है, इनअदर हमारे पास है, ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल पोर्शन है इस बिल्डिंग का, ठीक है। तो इस शेप का आर्किटेक्ट ने RMJM जो है लंदन आर्किटेक्ट RMJM ने किस तरह इस शेप को डिज़ाइन किया, किस तरह उसने आइडिया उसने लिया है, ठीक है। बेसिकली जब लंदन आर्किटेक्ट RMJM ने एक दफ़ा उसने समंदर में सफ़र किया है, ठीक है। तो वहाँ उसको टास्क मिला है कि आपको एक ऐसा बिल्डिंग डिज़ाइन करना है कि ऑल ओवर द पीपल विजिट टू इन दिस बिल्डिंग, ठीक है। सो बेसिकली उनका ख्याल ये था कि हम ऐसा बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे, ऐसा नया 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 आइडिया प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, नया बिल्डिंग डिज़ाइन हम करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जब वो समंदर में ट्रेवल करेंगी, तो वहाँ पर उसने ये ख्याल में आ रही है कि हमारे पास उस वक़्त तक वाटर का जो फ्लो है समंदर में, वो हमारे पास जो है जब टाइडल आ रही है, तो वहाँ पर समंदर का जो वाटर है वो ऊपर की तरफ आ रही है, टाइडल आ रही है, लहर आ रही है, ठीक है। तो लंदन आर्किटेक्ट RMJM ने वहाँ से जब देख लिया उस वाटर को, मैं आपको बताऊंगा, ये वाटर पे है, ये टाइडल जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन तक है। जब उसने ये समंदर में देखा उस वक़्त, तो उनके जहन में ये आ रही है कि हम जब बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस शेप की तरह हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो हम वहाँ यहाँ से उसने आइडिया स्टार्ट किया अपने डिज़ाइन के लिए, ठीक है। उसके बाद उसका नीचे पोर्शन जो है, he think that the new design of a building once upon when he traveled in the beach of the sea when where ocean tides an extreme position from this point, he started the idea of the leaning tower, this idea for the vertical portion of the tower। ये हमारे पास जो है वर्टिकल पोर्शन के लिए उसने सेलेक्ट किया है ये शेप, राइट। उसके बाद इसका जो नीचे पोर्शन है डिज़ाइन है, उसने नाउ दिस सिचुएशन, उसके बाद उसने द पोर्शन ऑफ द टावर शेप डिज़ाइन बेस ऑफ द टावर मीन दैट हॉरिजॉन्टल लाइक अबू दुबई डेजर्ट अप डाउन सेंट, ये आप देख सकते हैं अप डाउन सेंट जो है, राइट, ये वाला। उसका नीचे पोर्शन जो है ये नेचुरल जो है, मैंने पहले आपको बताया था कि आर्किटेक्ट जो है वो नेचुरल शेप से सिलेक्शन करते हैं, नेचुरल शेप से वो बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं। बिल्डिंग में इंटीरियर या उसकी आउटसाइड जो डिज़ाइन है, जितनी भी डिज़ाइन करते हैं वो नेचुरल से डिज़ाइन करते हैं, बहुत ज़्यादा नेचुरल पे फोकस करते हैं आर्किटेक्ट, राइट। तो उसने उस डेजर्ट से आइडिया लिया, उसके बाद उसने नीचे पोर्शन बिल्डिंग का नीचे पोर्शन जो है हॉरिजॉन्टल उसके मुताबिक उसने डिज़ाइन किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इनअदर एग्जांपल जो है, ठीक है, ये वाला बिल्डिंग, ये आपके जहन में आपके माइंड में क्या आ रही है कि ये बिल्डिंग किस तरह आर्किटेक्ट ने बनाया। अगर हम इस पे थोड़ा सा सोच करेंगे, थोड़ा सा हम थिंक करेंगे कि हमारे पास इस बिल्डिंग का जो शेप है वो किस तरह से आर्किटेक्ट ने किस तरह डिज़ाइन किया है। अगर हम बेसिक से हम इन चीज़ों पे हम विजुअलाइज हम करेंगे, हम थिंकिंग हम करेंगे, तो इस वजह से आर्किटेक्चर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आर्किटेक्चर का वो भी क्लियर हो जाएगी। अगर आप विजुअलाइजेशन न करें, कोई थिंकिंग न करें, तो डायरेक्टली आपको डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड आर्किटेक्चर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट,
ठीक है। सो ये टावर जो है ये आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है। नो वे इन दिस सिचुएशन प्रॉब्लम अकर इन स्ट्रक्चर इंजीनियर। उसके बाद ये तो हमारा फर्स्ट ये स्टेप इस बिल्डिंग के लिए, ये आप देख सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास ये बिल्डिंग भी है, ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसका लोड जो है वो स्टेबल है, ठीक है, उसका लोड जो है वो स्टेबल है, स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस बिल्डिंग को देखेंगे, ये वाला, ये एक साइड पे 18 डिग्री जो है वो इस साइड पे रोटेट है, इंक्लाइंड है, ठीक है, 18 डिग्री। लेकिन इस बिल्डिंग को स्टेबल करना, पहले मैंने आपको आर्किटेक्चर की जो काम है, वर्क है, मैंने एक्सप्लेन किया था। अभी टॉकिंग हम हमारे पास जो आर्किटेक्चर है हम इस पे बात करेंगे कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है इसका क्या काम है इस बिल्डिंग में, ठीक है। तो बेसिकली आर्किटेक्ट ने ये डिज़ाइन किया, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद नंबर बारी आ गई स्ट्रक्चर इंजीनियर। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जो है वो इस बिल्डिंग का स्टडी करेंगे, उसका फिर उसका डिज़ाइन वो करेंगे। पीआरसीडी हमने स्टडी किया है कि हम आ, इसको हम प्रोवाइड करेंगे नंबर ऑफ बार प्लेसमेंट। हम स्टील डिज़ाइन हम करेंगे कि हमारे पास आ, कितना स्ट्रेंथ इस पे हम इसको किस तरह हम स्टेबल करेंगे, इसके लिए कितना स्ट्रेंथ की कंक्रीट रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ये वाला बिल्डिंग, ये हमारे पास स्ट्रेट है, इसका लोड जो है वो अपनी वो स्टेबल फॉर्म में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली सो वी शो अनदर बिल्डिंग डिजाइन ऑफ आर्किटेक्चर 7 स्टार लग्जरियस होटल। ये हमारे पास जो है अबू दुबई 7 स्टार लग्जरियस होटल इन अबू दुबई। दिस इज 120 feet distant away from the side of the ocean। ये बिल्डिंग जो है ये एक आर्किटेक्ट को टास्क दिया गया है कि ये डिज़ाइन आप डिज़ाइन करिए बिल्डिंग, लेकिन ये बिल्डिंग हमारे पास जो है आप ओशन में डिज़ाइन करेंगे, समंदर में आप इस बिल्डिंग का डिज़ाइन जो है वो हम आ, हमारे पास जो नेचुरल ग्राउंड है वहाँ पर हम नहीं कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये हम क्या करेंगे वाटर में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, समंदर में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसका डिस्टेंस ये समंदर की जो साइड से 120 फीट अवे फ्रॉम द साइड, ये हमारे पास इसका डिस्टेंस जो है वो 120 फीट दूर है साइड से, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने पहले पहले यहाँ पर फिलिंग किया है वाटर में, ठीक है। तो इसका कास्ट इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इसने बहुत ज़्यादा फिलिंग किया है वाटर में, उसके बाद उसने ये डिज़ाइन यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन उसने किया है। अच्छा, तो हम बात करेंगे आर्किटेक्चर पे। तो आर्किटेक्चर ने ये डिज़ाइन किस आइडिया उसने लिया है, किस तरह ये डिज़ाइन उसने क्रिएट किया है, किस तरह उसने ये डिज़ाइन उसका बनावट किस तरह से है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। Tom Wright, architect, think that the design of this building when he travel in the ocean, he see the sailing boats of the ocean, and he think that this sailing boat's shape inside the ocean is looking very luxurious. Then start own thing for their architecture building design। मीन दैट कि हाँ इसका जो आर्किटेक्ट था वो लंदन आर्किटेक्ट जो था वो बेसिकली उसने समंदर में उसने ट्रेवल किया है, ठीक है। तो उस वक़्त जब ट्रेवल वो समंदर में उसने जो सफ़र किया तो उस वक़्त उसने एक सेलिंग बोट देखा समंदर में, ठीक है, ये वाला। उनको पहले पहले एक अबू दुबई शेख ने उनको टास्क दिया गया कि आप एक ऐसा बिल्डिंग डिज़ाइन करें कि all over the world people coming to visit in this building, right। तो उनको टास्क दिया गया है, लेकिन ही एवरी डे थिंक दैट कि हम ऐसा बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे कि हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल विजिट के लिए यहाँ आते हैं, ठीक है।
जब वो समंदर में ट्रेवल करेंगी तो उसने इस सेलिंग बोट्स पे नज़र आ रही है, ठीक है। जब उसने ये देखा तो उनकी, मैंने पहले आपको बताया था, आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट जो है वो पहले विजुअलाइजेशन करेंगे। तो उसने ये अपने जहन में, माइंड में रखा, ये पिक्चर उसने जहन में रखा, ये पिक्चर जो है उसने ये विजुअलाइजेशन किया उस वक़्त, ये सोच कर उसकी जहन में ये ख़्याल आ रही है कि हम, अगर हम इस तरह बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे, आप भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस तरह बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे तो पहले पहले उनको ये टास्क दिया था कि आप वाटर में बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे, समंदर में। तो उसने ये आइडिया पेश किया कि हम इस तरह बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे तो दिस इज़ एलिगेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल, राइट। सो यहाँ से उनका डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो उसने फिर इस पे प्रैक्टिस किया, फिर सिंपल उसने डिज़ाइन बनाया, फिर उसने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, फिर उसने दोबारा उसमें मॉडिफिकेशन किया, ठीक है। ये है हमारे पास सेलिंग बोट, ठीक है। तो उसके ज़रिए ये डिज़ाइन उसने डिज़ाइन किया है बिल्डिंग का, ठीक है, इस सेलिंग बोट के ज़रिए, ठीक है। अगर हम इस पे थोड़ा सा सोच करें, थोड़ा सा हम थिंकिंग करें, सो दैट्स वाई आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन आर्किटेक्चर। तो हम क्या करेंगे, हम जब बिल्डिंग देखते हैं, देखेंगे किसी जगह पे, तो हम क्या करेंगे, हम विजुअलाइजेशन हम करेंगे कि हमारे पास ये बिल्डिंग जो है ये किस तरह आर्किटेक्ट ने बनाया, इसमें क्या राज पोशीदा है, ठीक है। हम ये डिसीजन करेंगे, ठीक है। तो ये है सेलिंग बोर्ड्स, ठीक है। तो उसमें अगर ये उसने ये भी सोच किया है, ख्याल किया है कि ये सेलिंग बोर्ड हमारे पास जो है ये वाटर में है, अगर इस सेलिंग बोर्ड की तरह हम बिल्डिंग डिज़ाइन करें तो ये हमारे पास एलिगेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये इसका पहला स्टेप जो है, ठीक है, ये वाला पहला स्टेप लंदन आर्किटेक्ट जो है उसने ये पहला स्टेप स्टार्ट किया है इसका डिज़ाइन जो है, ठीक है। उसके बाद ये उसने पहला स्टेप डिज़ाइन किया, ये कंसेप्चुअल लेआउट है इस बिल्डिंग का। तो फिर उसने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, ये है उसका साइड व्यू है, ये अनदर साइड व्यू है, ठीक है। तो उसने इसमें मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है। उसके बाद उसने ये एडवांस फॉर्म में AutoCAD में या इनदर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें उसने उस डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है, now we coming to explain the concept of architecture. Let's suppose we construct a building and other mega structure. So other mega structure, so we use different steps to achieve and manage the construction of building process. First of all, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है another example जो है हमारे पास, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन भी इस पे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है साइट एनालिसिस, ये बेसिकली आर्किटेक्चर का वर्क है। तो इस साइट एनालिसिस पे हम क्या करेंगे, इस पर हमारे पास एक लेक्चर है, तो हम इंशाल्लाह हम इस पे डिस्कशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन हम करेंगे डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है साइट एनालिसिस, हम क्या, साइट एनालिसिस इज कंसिस्ट ऑफ साइट सिलेक्शन and there are different steps such as Peshawar in Islamabad. Understand? Different cities, so we select one place. हमारे पास जब different cities आ रही है तो हम क्या करेंगे, one place हम select करेंगे। In this case, client is very confused in this condition. Architect satisfied to client this is the architecture work. First of all, architect think that which is side is more economical and uh, architecture satisfied the client before made a plan with the side elevation and front elevation with the help of rough sketch. When the plan is done after convert to the R2CAD advanced form. Then the original drawing is called blueprint. After this plan sent to the consultants such as Peshawar PDA, check the plan and design of the building. After completing these process, final drawing are called working drawing. Right?
उसके बाद बारी आ रही है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। जब वो आर्किटेक्चर ड्राइंग जो है उनके साथ प्लान जो है वो कंप्लीट करती है, फिर वो सेंड से प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है, ठीक है। सो बारी हमारे पास आ रही है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग वर्क। आफ्टर दिस प्लान सेंड टू स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियर रीड द प्लान एंड डिजाइन द ऑल स्ट्रक्चर। पहले वो क्या करते हैं, इसको ये समझ आ रही है, पहले उस पे वो थिंकिंग करते हैं कि ये हमारे पास जो आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया है, जिस तरह हमारे पास ये डिज़ाइन जो है, उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो इस बिल्डिंग में वो ऑल द स्ट्रक्चर सच एज नंबर ऑफ बार, बार प्लेसमेंट, लोड कैलकुलेशन करते हैं, वो इसमें डिज़ाइन करते हैं वो ऑल स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर इंजीनियर। उसके बाद वो क्या करते हैं, बार प्लेसमेंट एंड नंबर ऑफ बार, लोड कैलकुलेशन जो करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लोड हमारे पास जो है, सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, लाइव लोड, हमारे पास सेस्मिक लोड, इसके अलावा हमारे पास जो है स्नो लोड, dead load, wind load, self weight of the structure. So all these load calculation करती है, फिर उसके डिज़ाइन उसके मुताबिक वो अल्टीमेट लोड, उसके बाद कैलकुलेशन जो करते हैं, उसके बाद लास्ट में स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के साथ अल्टीमेट लोड आ रही है। उस अल्टीमेट लोड की जरिए वो क्या करते हैं, वो उस बिल्डिंग की हमारे पास सच ही हमारे पास बिल्डिंग है, उस लोड के जरिए वो क्या करते हैं, उस बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। उसके मुताबिक वो एस्टिमेट द कंक्रीट स्ट्रेंथ, उसके बाद वो ये चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सच यहाँ पर या हमारे पास बीम जो है, इनके लिए हम कितना रिइंफोर्स हम प्रोवाइड करते हैं, इस बीम के लिए हम कितना कंक्रीट जो है उनका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। जिस तरह हमारे पास मिक्स रेशो, मिक्स डिज़ाइन है, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पर इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए। जिस तरह हमारे पास 40 की एसआई, 60 की एसआई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। या हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट स्टील जो है वो भी सजेस्ट करती है, वो प्रोवाइड करती है ड्राइंग में कि हमारे पास यहाँ पर 60 ग्रेड का स्टील जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज यहाँ पर इतना लोड आ रही है, यहाँ पर इतना लोड आ रही है। उसके मुताबिक वो क्या करते हैं, वो ये सजेस्ट करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इतना आप रिइंफोर्स, इतना डाया होना चाहिए, ठीक है। ये किसका काम है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का काम है, ठीक है। उसके बाद बारी आ रही नंबर आ रही है जियो टेक्निकल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो हमने 2 स्टेप कवर किया, पहले आर्किटेक्ट ने ये डिज़ाइन किया है, ये हमने शॉर्ट डिस्कशन किए, थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। लेकिन आर्किटेक्ट इट इज़ वेरी डीप स्टडी, डीप सब्जेक्ट, डीप टफ सब्जेक्ट, इसमें हम डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। सो हम आपको शॉर्ट डिस्कशन इस पे करेंगे, शॉर्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आर्किटेक्चर का वो भी क्लियर हो जाएगी इसके साथ, ठीक है। उसके बाद जब पहले आर्किटेक्ट ने ये डिज़ाइन किया है, ठीक है, फिर स्ट्रक्चर ने उसकी स्टेबिलिटी के लिए उसने उसने भी डिज़ाइन किया है कि हमारे पास यहाँ इतना रिइंफोर्स चाहिए, यहाँ पर इतना कंक्रीट हम रिक्वायर, हमारे पास रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है जियो टेक्निकल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। जब हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसके लिए इसका फाउंडेशन हम जो प्रोवाइड करते हैं वो हमारे पास जो है जियो टेक्निकल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग analyze the soil, check the water table, and perform different experiment to find the unit weight of the soil, density of the soil, specific gravity, shear strength, and permeability, to collect the data from that soil and compaction the soil after and find the bearing capacity of the soil and selection of the foundation and footing, ठीक है। उसके बाद जो टेक्निकल इंजीनियरिंग का जो काम है वो बेसिकली सोयल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने से पहले वो सॉइल से सैंपल लेकर उस पर डिफरेंट टेस्ट करेंगे, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वो इस सॉइल का यूनिट वेट, डेंसिटी ऑफ द सॉइल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल, शेयर स्ट्रेस, परमिबिलिटी, एसपी टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे, ड्राई डेंसिटी टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे। उसके बाद वो फाइंड करते हैं कि हमारे पास बेसिकली हमारे पास 95% हम रिक्वायर्ड है बिल्डिंग के लिए कम्पेक्शन, जब हम फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर उसके साथ वैल्यू 70% आ रही है तो वो क्या करेंगे, 95% तक वो वैल्यू इम्प्रूव करेंगी,
और वो क्या करेंगे, किस चीज़ के ज़रिए, वो कंपैक्शन के ज़रिए भी इम्प्रूव कर सकते हैं बेयरिंग कैपेसिटी, कंपैक्शन के ज़रिए भी इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा वो डिफरेंट हमारे पास टाइप्स जो है, लेकिन केमिकल हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन केमिकल हमारे पास कॉस्टली पर भी हो जा सकती है, लेकिन ये हम स्पेशल केसेस के लिए हम क्या करते हैं, हम केमिकल हम यूज़ करेंगे, राइट। उसके बाद जो टेक्निकल इंजीनियर जो है लास्ट में वो सेलेक्ट करते हैं कि इस बिल्डिंग के लिए, ये हमारे पास जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का लोड स्ट्रक्चर इंजीनियर ने उनको शो कर रही है कि ये हमारे पास इनका इतना लोड आ रही है, उसने ऑलरेडी अपने डिज़ाइन के लिए फाइंड किया है। फिर वो लोड जो है, लोड कैलकुलेशन जो है कि हमारे पास सच इज 80 psi लोड हमारे पास इस बिल्डिंग का है, ठीक है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो तो लोड जो है वो जो टेक्निकल इंजीनियरिंग को देते हैं कि इस पे आप फाउंडेशन डिज़ाइन करेंगे। हमारे पास 80%, फॉर एग्जांपल 80% तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि सच इज इस बिल्डिंग का 80 के एस आई लोड हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इस लोड के लिए वो फाउंडेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास आया सोयल जो है वो उसका बेरिंग कैपेसिटी इतना है, उसका शेयर स्ट्रेंथ इतना है, उसका यूनिट वेट इतना है। जो टेक्निकल इंजीनियर जो है वो डिसाइड करते हैं कि इसके लिए हम ये फाउंडेशन हम प्रोवाइड करेंगे, ये आ, या हमारे पास इस पुटिंग जो है, ये पुटिंग हम प्रोवाइड करते हैं इस बिल्डिंग के लिए। ये बेसिकली जो टेक्निकल इंजीनियरिंग का काम है, राइट। उसके बाद हमारे पास जो बारी आ रही है साइट इंजीनियर। साइट इंजीनियर जब वो आर्किटेक्ट ने प्लान तैयार किया, डिज़ाइन तैयार किया है, फिर वो डिज़ाइन स्ट्रक्चर इंजीनियर प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर को देते हैं, फिर वो डिज़ाइन करते हैं, फिर जो टेक्निकल इंजीनियर उस पर काम करते हैं, उसमें वो सिलेक्शन करते हैं कि हम इतना फुटिंग या इतना फाउंडेशन हम प्रोवाइड करते हैं। ऑल ड्राइंग हमारे पास जो है वो कंप्लीट सेट बन जाती है। लास्ट में हमारे पास जो है वो कंप्लीट सेट जो है, फिर वो सेट जो है उसको हम वर्किंग ड्राइंग भी कह सकते हैं, ठीक है। उस पर ऑल इंजीनियर जो है, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर इंजीनियर, सोयल इंजीनियर जो है, ऑल इंजीनियर ने वर्क किया है उस ड्राइंग पे। वो हमारे पास प्रॉपर सीट बन रही है। फिर वो सीट जो है वो हम क्या करेंगे, हम सेट करेंगे साइट इंजीनियर जो है। फिर साइट इंजीनियर आफ्टर द दिस ड्राइंग आर प्लेन जो है फॉरवर्ड टू द साइट इंजीनियर, वो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे साइट इंजीनियर। रीड द ड्राइंग एंड केयरफुली, साइड इंजीनियर जो है वो रीड करेंगे केयरफुली, देन स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ड्राइंग। फिर वो ड्राइंग जो है उस वो हाँ वो अप्लाई करेंगे और बिल्डिंग जो है वो डिज़ाइन करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे साइड पे, ठीक है। सो दिस इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ आर्किटेक्चर एज वेल एज सिविल इंजीनियरिंग वर्क इन ए प्रोजेक्ट, ठीक है। हमने ये भी एक्सप्लेन किया है कि सिविल इंजीनियरिंग का क्या रूल है आर्किटेक्चर में, या आर्किटेक्चर का क्या रूल है सिविल इंजीनियरिंग में। ये बेसिकली कंबाइन काम कर रही है आपस में वो डिस्कशन कर रही है, ठीक है। एक दूसरे को डिसीजन करते हैं कि आपका डिज़ाइन ये ठीक है या गलत है। स्ट्रक्चर इंजीनियर ये भी आर्किटेक्ट से डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेसिक डिज़ाइन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। वो तो इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे, ये विजुअलाइजेशन करेंगे, ये इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हम तो आर्किटेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन हम सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम आर्किटेक्ट की स्टडी हम इतनी करेंगे जब हमें ड्राइंग या ड्राइंग हमें प्रोवाइड है, या हमारे पास जो आर्किटेक्ट का जो डिज़ाइन है, जब जब हम उनको देखेंगे तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, समझ आ रही है। अगर हम इस पे ज़्यादा हम स्टडी करेंगे, हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम इनके आर्किटेक्चर की हम नॉलेज गेन करेंगे, राइट। उसके बाद हमारे पास जो है ये हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है, हम इनके बारे में हम डिस्कशन करें। डायलॉग हमारे पास जो है, ठीक है। एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी जो है, मैंने पहले आपको बताया था कि मैं ऐसा इंट्रोडक्शन करूँ यहाँ पे कि जितने भी आपको कमिंग लेक्चर जो है उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास जो बैलेंस जो है सिमेट्रिकल जो है, ठीक है, ये तो इजी है।
इनमें कोई मुश्किल नहीं है। ये तो मैं आपको इस पिक्चर के ज़रिए, मैं आपको इस शेप के ज़रिए, इस बिल्डिंग के ज़रिए मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन। ओके, थैंक यू।